دش صاحب اس مدرسہ کے استاذ جناب ماسٹر شبیر صاحب، اس مدرسہ کے اہم رکن جناب ابوالخیر صاحب، جناب ابوبکر صاحب، جناب شریف صاحب، جناب فضل الرحمان صاحب اور اس ادارہ کی معلمہ سیدہ منیرہ خاتون، میرے عزیز بچوں اور میری پیاری بہنیں، یہ جو پروگرام آپ کے درمیان ہو رہا ہے سال کا سب سے آخری پروگرام ہے. اسے الوداعی پروگرام یا الوداعی تقریب بھی کہہ سکتے ہیں. کل یا پرسوں سے رمضان باضابطہ شروع ہو جائے گا، بلکہ عین ممکن ہے، غالب امکان ہے کہ کل سے رمضان شروع ہو جائے گا. یعنی کل سورج ڈوبتے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوگا اور تراویح کی نماز ہوگی اور اس کے بعد اگلے دن منگل سے روزہ بھی شروع ہو جائے گا. پورے سال آپ لوگوں نے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا تھا. پورے سال آپ لوگوں نے پڑھائی کی ہے، کافی محنتیں کی ہے، مشقتیں کی ہیں اور آپ لوگوں نے سال کے تمام پروگراموں میں حصہ لیا ہے، تمام امتحانوں میں حصہ لیا ہے اور آپ کی کلاسوں میں، آپ کے درجات میں جو کتابیں تھیں سب کو آپ لوگوں نے شوق سے اور لگن کے ساتھ پڑھا ہے. سال کے اخیر میں ان تمام محنتوں کا ثمرہ ہمیں ملنا چاہیے. اس سال کے علاوہ گزشتہ سالوں میں جو آپ نے کتابیں پڑھی ہیں اور جو معلومات حاصل کی ہے ان کا بھی نتیجہ ہمیں ملنا چاہیے. ظاہر ہے ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یعنی ہمارے جو بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خاص طور سے جو ہماری یہ طالبات ہیں اور ہماری بہنیں ہیں، وہ جو علم حاصل کر رہی ہیں ان کا اثر ہماری زندگی پر ہونا چاہیے. ان کا جو تاثر ہے اور تعلیم کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارے سرٹیفکیٹ کے ساتھ اور ہماری ڈگری کے ساتھ اور کاغذ کے ساتھ ہماری زندگی پر بھی ہونا چاہیے. ہم ایک اچھا انسان بنے. پڑھنے کا مقصد اور تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہترین انسان بنے، شریف انسان بنے، دیندار انسان بنے. اور ابھی اس سے قبل کئی طالبات نے تقریریں کی. تمام تقریروں کا موضوع تقریباً یہی تھا کہ اسلام نے لڑکیوں کو بڑا مقام عطا کیا ہے، عورتوں کو بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے اور سماج اور معاشرہ کی اصلاح میں لڑکیوں کا اہم رول ہوتا ہے، اہم کردار ہوتا ہے. دعوت و تبلیغ میں، اچھے کام میں جب تک خواتین اسلام اور بناتی حوا اور ہماری مسلم بہنیں ساتھ نہیں دے سکیں گی اس وقت تک دعوت کا کام اچھے ڈھنگ سے نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ ضروری ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب تک لڑکیوں کا کردار نہ ہو، ان کا حصہ نہ ہو اور خواتین کی بھاگیداری نہ ہو، سماج سدھر نہیں سکتا ہے، معاشرہ اصلاح نہیں پا سکتا ہے اور برائیوں کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. صرف علماء، صرف مرد حضرات برائی کو ختم کرنے میں لگے رہیں، عورتیں چپ چاپ بیٹھی رہیں، ہماری مائیں چپ چاپ بیٹھی رہیں، ہماری بہنیں چپ چاپ بیٹھی رہیں، ہماری بیٹیاں چپ چاپ بیٹھی رہیں، وہ اپنا ہاتھ نہ بٹائے تو یہ دعویٰ کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ پھر برائی ختم نہیں ہو سکتی. بلکہ اصل یہ ہے کہ اصل کردار، بنیادی کردار عورتوں کا ہوتا ہے. چونکہ ماں کو پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے. ایک طالبہ شعر بھی پڑھ رہی تھی، الام مدرسۃ الاولی اجازتها عادت کا شعباً طیب الآراء، کہ ماں پہلا مدرسہ ہوتی ہے، پہلی اکیڈمی ہوتی ہے. تو جب پہلا مدرسہ ہی خراب ہو جائے، پہلی اکیڈمی خراب ہو جائے تو پھر سارے باہر کے مدرسے اور
उनका कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। तो अब रमजान का महीना, मुबारक महीना शुरू होने वाला है। आप तमाम लोग खुद भी इबादतों में लग जाएं। सबसे बड़ी इबादत ये रोजा है। रोजा रमजान की सबसे बड़ी इबादत है, और जो भी बालिग मर्द है, बालिग औरत है, उस पर रोजा फर्ज आयन है। बहुत सारी तालिबात हैं जिन पर रोजा फर्ज आयन है, रोजा उनके लिए माफ नहीं है, तो उनको तो रखना ही है। जो बालिग मर्द है, बालिग औरतें हैं, जो भी बच्चे, जो भी लड़के बालिग हो चुके हैं, जो भी लड़कियां बालिग हो चुकी है, उन पर रोजा फर्ज है, जरूरी है। लेकिन जो बालिग नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन्हें भी रोजे की तरबियत देनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी है? माँ की है, अब तमाम बहनों की है, तालिबात की है, कि वो बच्चियों को तरबियत दें, बच्चों को तरबियत दें कि रोजा रखें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताब में एक बाब बांधा है, बाबो सौम सिबियान, बच्चों के रोजा रखने का बाब। उसमें एक खातून सहाबियां हैं, हजरत रुबैया बिनते माइज रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो खुद कहती हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम लोगों को रोजा रखने का हुक्म दिया, तो हम खुद रोजा रखते थे, यानी हम तमाम खवातीन औरतें खुद रोजा रखती थी, और अपने बच्चों को भी रोजा रखवाते थे, अपने बच्चों से रोजा रखवाते थे। यानी जो बच्चे 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, जो भी बालिग नहीं हुए हैं, जिन पर रोजा फर्ज नहीं है, जिनके रोजा जरूर है, उनसे भी रोजा रखवाते थे, नेकियों की तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो ये कौन काम करवाएगी? बच्चियां करवाएगी, माँ करवाएगी, बहनें करवाएगी। बाप तो अपने कामों में मशगूल होते हैं, बाहर होते हैं और इधर उधर होते हैं। असल माओं की जिम्मेदारी है, बहनों की जिम्मेदारी है, लड़कियों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों से भी रोजा रखवाए। और हम लोग छोटे बच्चों से भी रोजा रखवाते हैं। तो चाहे आने वाला रमजान हो या रमजान के बाद वाली जिंदगी हो, हमारी पूरी जिंदगी तालीम के मुताबिक होनी चाहिए, इल्म के मुताबिक होनी चाहिए। यही पढ़ने का मकसद है। हम पढ़े भी, लिखे भी, मदरसा में तालीम हासिल करें, और हम बुराइयों में लगे रहें, गलत कामों में लगे रहें, और इस्लाम की खिलाफ वर्जी करें, बेपर्दगी का मुजाहरा करें, और जो भी गैर शरई काम है उनको करते रहें, तो फिर पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। बल्कि ऐसी बच्चियों से और ऐसी लड़कियों से, वो लड़कियां अच्छी हैं जो घाट चीरती हैं, जो पत्ता जाकर के खड़ा करके लाती है, जो भैंस चराती है, वो ज्यादा अच्छी है। अगर वो फिल्म नहीं देखती है, गाना नहीं सुनती है, सिर्फ बाहर मजबूरी है, गुर्बत है, परेशानी है, माँ बाप खुशहाल नहीं है, तो जाकर के बागीचे में, गाछी में पत्ता खड़ती है या घास चीरती है, तो कुछ बेपर्दगी का मामला हो जाता है, अलग बात है। लेकिन वो बाज़ाब्ता इश्क नहीं करती है, बाज़ाब्ता गाना नहीं सुनती है, फिल्म नहीं देखती है, तो पढ़ने वाली बच्चों से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके अंदर गैर शरई चीजें नहीं पाई जाती। तो इसलिए तालीम का मकसद ये है कि हम खूबसूरत इंसान बनते। चेहरे से कोई खूबसूरत नहीं हो जाता है। कोई बेहतरीन नकाब पहन ले, बुर्का पहन ले, सूट पहन ले, तो उससे कोई खूबसूरत नहीं हो जाता है। शायर कहता है, अरबी का शायर कहता है कि लैसल जमालु बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्मी वल अदब। खूबसूरती हमारे कपड़ों में नहीं है, बल्कि खूबसूरती इल्म की खूबसूरती है, अदब की खूबसूरती है। तो हमारे अंदर अच्छे अखलाक होने चाहिए, हमारे अंदर अच्छी आदत होनी चाहिए, जीने का तरीका होना चाहिए, जिंदगी गुजारने का सलीका मालूम होना चाहिए, मुहज़्ज़ब इंसान बने, तहजीब हो, शराफत हो, हम बड़ों से कैसे बात करें, बच्चियों के अंदर शराफत हो, पाक दामनी हो, इफ़्फ़त हो, ये सब खूबसूरत हो, ये सब औरतों की, लड़कियों की खूबसूरती है। खूबसूरत होना ये कोई बड़े होने की अलामत नहीं है। बहुत सारे खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन बदतमीज है, बदखुल्क है, बोलने का तरीका नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता है, माँ को गाली देता है, बाप को गाली देता है, तो ऐसी खूबसूरती और ऐसी जवानी, ऐसी ताकत का क्या फायदा? वो तो आए भी उसके अंदर, आजाद है उसके लिए। बहुत सारे खूबसूरत लड़कियां हैं जो अपनी खूबसूरती पर इतराती है, हम खूबसूरत हैं, हम हसीन है, जमील है, और बदखुल्क है, बदतमीज है, और उसके अंदर हया नहीं है, शर्म नहीं है, उसके अंदर पाक दामनी नहीं है, इफ़्फ़त नहीं है, माँ बाप से अच्छे से बात नहीं करती है, शरीयत की पाबंदी नहीं करती है, तो वो लड़की
बेकार है, उसकी खूबसूरती बेकार है, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए खूबसूरत होना चाहिए, खूबसूरत होना कोई जरूरी नहीं है। कोई काली करोटी लड़की है, काला करोटा लड़का है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल खूबसूरत होना चाहिए, हमारा दिल खूबसूरत होना चाहिए। और दिल कैसे खूबसूरत होता है? तकवा से, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, शरीयत पर अमल करने से दिल के अंदर खूबसूरती पैदा होती है। दिल ही दागदार है, दिल के अंदर सिया धब्बा है, सिया दाग है, चेहरा खूबसूरत है और खूब ताकत है, नौजवानी की जिंदगी गुजर रही है, तो इससे कोई इंसान बड़ा नहीं हो जाता है। तो ये सब क्या है? तालीम का असर है। असल में जो कहना चाहता हूँ ये कि आपने अभी 1 साल तालीम हासिल की है और इससे पहले आपने कई साल मुसलसल तालीम हासिल की है, उसका फायदा होना चाहिए, उसका असर होना चाहिए हमारी जिंदगी पर। आप अच्छे बने, नेक बने और जिंदगी जन्नत वाली होनी चाहिए। माँ बाप खुश हो, हमारे पड़ोस के लोग खुश हो, हमारे गांव के लोग खुश हो, खानदान के लोग खुश हो और हमारी जिंदगी से दूसरों को फायदा पहुंचे। हम इबादत में लगे रहें और हम समाज और माशरा की इस्लाह करें। आप तमाम बच्चियां माशाल्लाह बहुत ही समझदार हैं और शऊर रखती हैं, बहुत खुशी होती है। बात तालबात जो है बहुत अच्छी जहन की है और काफी होशियार है। उनकी जिम्मेदारी है कि रमजान में जो रोजे के मसाइल है उन्हें बताएं। चंद अपने जो पहले तो घर की औरतों को जमा कर लें, फिर खानदान की औरतें हैं, फिर जो है आस पड़ोस की औरतें हैं, हर लड़की जो है अपना एक हल्का बना ले और खुद तरावी भी पढ़ा सकती है। सूरह तरावी सबको अम्मा पारा, आखिरी पारा जो है याद है, सूरह तरावी भी पढ़ा सकती है। उसके बाद आधा घंटा 20 मिनट दर्स दे और दर्स में क्या बताए? तो रोजे के मसाइल हैं, उसके अलावा जो है औरतों से मुतालिक जो है मसाइल हैं, किताबें बहुत सारी औरतों से मुतालिक है, फतावा बराए ख़वातीन या खातून के मसाइल, औरतों के मसाइल, बहुत सारी किताबें हैं, उनको पढ़ करके और देख करके औरतों को बताना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां और औरतें औरतों के मसाइल को नहीं जानती हैं, जिनकी वजह से रोजा में भी दिक्कत होती है और जिंदगी के तमाम इबादत में परेशानी होती है। तो ये सब जिम्मेदारी है, तालबा की ये सब जिम्मेदारी हमारी बहनें हैं। पढ़ने का ही मकसद है, यानी एक कायदाना जिंदगी गुजारे, एक रोल मॉडल की तरह जिंदगी गुजारे। ये नहीं कि बस आज से तालीम खत्म और फिर 1 महीना रमजान तक जो है जो घास छीलती है वो भी, और अभी जो पढ़ती है हमारे ईसा फूफा की जो पोती वो भी बराबर हो जाए, कोई फर्क ही नहीं नजर आए। दोनों जो है बैठ करके गीत गा रही है, गाना सुन रही है, फिल्म देख रही है और जो है क्या क्या कर रही है। तो फर्क होना चाहिए, पढ़ने वाली और जो नहीं पढ़ती है उनमें फर्क होना चाहिए, इम्तियाज होना चाहिए कि नहीं ये तो पढ़ने वाली मदरसतुल अमीन सल्फिया की ये तालिबा है। तो ये असर होना चाहिए, ये नहीं कि जो है ऐन भी और गैन भी दोनों बराबर हो जाए, दाल भी बराबर भात भी बराबर, फर्क ही नहीं रहे क्या दाल है क्या भात, तो दोनों में फर्क होना चाहिए। और आपको मालूम है कि आपको जो मकाम है, तकरीरों में आप सुनते रहते हैं कि हकीकत में जो लड़कियों का मकाम है वो मकाम और तो मर्दों का नहीं है, लड़कों का नहीं है। इस्लाम ने लड़कियों की तालीम और तरबियत के बदले में जन्नत का तोहफा दिया है। जो अजर और सवाब बच्चियों की तालीम और तरबियत में है, वो जो सवाब बच्चों की तालीम और तरबियत में नहीं है। एक हदीस पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाआ यौमल क़ियामा हुआ व अना कहतैन वज़म्मा असाबिअहु। रवाह मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दो बच्चियों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करता है, परवरिश और फसाख करता है, किसी हदीस में 3 बच्चों की बात की गई है, बल्कि किसी में 1 की भी बात की गई है। जो लड़कियों की और बहनों की, हदीस में बहनों का भी जिक्र है, बिनतैन और उख्तैन दोनों का तज़किरा है। जो बहरहाल यानी लड़कियों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करता है, यानी उसे मदरसा, अगर कोई गार्जियन चाहे बाप हो या भाई हो या दादा हो या नाना हो, कोई भी लोग हो, मर्द हजरात है जो गार्जियन और जिम्मेदार हैं, वो अगर लड़कियों को, बच्चों को मदरसा भेजते हैं, तालीम दिलवाते हैं, तरबियत करते हैं, दीन की बातें बताते हैं, यहाँ तक कि वो बालिग हो जाती है, चाहे बेटियां बालिग हो जाए, बहनें बालिग हो जाए, पोती नाती जो भी रिश्तेदार हो वो और बालिग हो जाती है और फिर उनकी शादी ब्याह हो जाती है और अच्छी जिंदगी गुजारती है। तो जो आदमी ऐसा करेगा तो
साथ साथ होंगे। अल्लाह के रसूल ने दोनों उंगलियों को मिलाया और ऐसे कहा, जो बेटियों और बच्चियों की तालीम तरबियत का इंतजाम करता है तो ऐसे होंगे, तुम बिल्कुल साथ साथ में। तो ये अपने आप में कितना बड़ा फजल है, मकाम है औरतों का। बच्चों के बारे में नहीं कहा, बेटों के बारे में नहीं कहा है। और जन्नत तहत अक़दाम उम्महात, माओ के कदमों के नीचे क्या है? जन्नत है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की फजीलत, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की फजीलत, खदीजा और जितनी भी सहाबियात हैं, अल्लाह के रसूल की बेटियां, तमाम की फजीलतें जो है मारूफ हैं। और हर एतबार से इस्लाम ने औरतों को मकाम अता किया है। इस्लाम में जितनी फजीलत औरतों के बयान की गई है और जो मकाम औरतों को दिया गया है वो किसी और धर्म में, किसी और रिलीजन में, मजहब में नहीं है। तो इसलिए आप अपने मकाम को समझिए। बेटी को पालने पोसने से जन्नत है और बेटा को पालने पोसने से भी जन्नत है, लेकिन इसी को गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो है आप लोग अच्छे बने। आप लोग अगर अच्छे बनते हैं तो फिर माँ बाप का बेड़ा पार हो जाए, माँ बाप निजात हासिल कर लेंगे। लेकिन याद रखें कि बहुत सारी लड़कियां तालीम पा करके और बेहया हो जाती है, एडवांस हो जाती है और उसके अंदर जो है बदतमीजी आ जाती है और बेपर्दी का मुजाहरा करती है। देख रहे हैं ना समाज माशरा में और दुनिया में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है जो जितनी पढ़ी लिखी उतनी ही बेपर्दा। अगर गांव देहात में गैर मुस्लिमों में देखते होंगे कि आप देखिए यहाँ बिरादरियां हैं, जो लड़कियां नहीं पढ़ती है वो कम से कम शूटर सलवार पहनती है, और जो बेनी पढ़ती है, रेल में पढ़ने जाती है गैर मुस्लिम, वो जीन्स टी शर्ट। और भी दिल्ली चली गई, पटना चली गई तो स्कर्ट, फिर धीरे धीरे वो नंगी होती चली जाती है। तो ये जो है गैर मुस्लिमों की तालीम का असर है। और मुसलमानों के अंदर भी हो रहा है, जो मॉडर्न मुसलमान हैं, बाहर में रहते हैं, उनका भी हाल है। लेकिन हम मुसलमानों का, यानी आप तमाम बच्चों का ये हाल नहीं होना चाहिए। आप लोग दीन की तालबा हैं, दीनी मदरसे की तालबा हैं, आप पर्दा में रहें। और अकबर इलाहाबादी का ये शेर याद रखें कि तालीम लड़कियों की जरूरी तो है, मगर तालीम लड़कियों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सभा की करीना। बहरहाल बातें तो बहुत सारी है और अभी इसके बाद 2-4 मिनट हमारे उस्ताद मोहतरम और जो सदर हैं अलविदा तकरीब के, वो अपनी कुछ बातें रखेंगे। मैं सिर्फ इत्तफा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारिल्लाह हम तमाम लोगों को पूरी जिंदगी दीन और शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।